سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج ساؤتھ افریقہ سے میڈم ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ناظرین، کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ فوج کے متعلق کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو پاکستان سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو میڈم سے پوچھیں گے، میڈم یہ بتائیے کہ جو لوگ یہاں پہ کوئی بات سچ اور حق کی یورپ میں بیٹھے کرتے ہیں تو اٹھاؤ ان کے گھر والوں کو لیا جاتا ہے، یہ ظلم کیوں نہیں بند ہو رہا؟ السلام علیکم۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک کل نئی خبر سامنے آئی ہے اور سن کے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے ملک کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ الادین سم تھنگ کچھ نام ہے نا ان کا، وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور باتیں کرتے ہیں کہ آپ ظلم اور زیادتی بند کریں۔ ان کے والد کو وہاں سے یونیورسٹی سے اٹھا لیا گیا، ایک دفعہ پہلے بھی اٹھایا گیا تھا، ان کے چاچو بھی تھے ساتھ، تب چھوڑ دیا تھا، ابھی خالی ان کے والد کو اٹھایا گیا ہے۔ اور یہ بہت ہی جو بھی ہو رہا ہے نا بہت غلط ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک اتنی گھٹن کی فضا ہے، جیسے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، آپ کہیں پہ بھی بات نہیں کر سکتے، نہ سوشل میڈیا پہ نہ ویسے، ہر جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ کے اوپر ہر قسم کی پابندی ہے۔ یہ ظلم و فسطائیت اور اتنے گھٹن کا ماحول تو کبھی ضیاء اور مشرف کے دور میں بھی نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی آج ٹی وی چینلز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا جتنا آزاد ہے، یہ مشرف کے دور میں ہوا تھا۔ یہ اس کے دور میں اتنے زیادہ ٹی وی چینل جو تھے وہ بنے تھے۔ تو میں تو سوچ کے حیران ہوتی ہوں۔ اور وہ جو باجوہ صاحب ہیں، قمر جاوید باجوہ، جب وہ تھے نا اقتدار میں، تو انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ میرے بعد جو آنے والا ہوگا نا تو تم لوگ اس کا دور نہیں بھول پاؤ گے کہ وہ کس قسم کا ہے، تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی بات کہیں بھی مجھے کئی بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ واقعی اس نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ کہا، کہ ہم لوگ یہ دور جو ابھی چل رہا ہے نا یہ ہم لوگ نہیں بھول سکتے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ بات کرنا محال ہے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ شاید وہ میرا بھی نمبر کہیں سے ٹریس کر کے مجھے بھی کبھی کالز آئیں گی کہ آپ کیوں بات کرتی ہیں پاکستان کے بارے میں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور سراسر زیادتی کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا، یہ بخشے نہیں جائیں گے، اور ان کو دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آپ یاد رکھیے۔ اچھا، مختصر جوابات دیجیے۔ پہلی چیز جو ایک اور آپ کو بتا دیں کہ جو انگلینڈ میں قاضی فائزی صاحب کو گالیاں دی گئی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ بڑی خطرناک دھمکی دے دی گئی ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ختم ہو گئے، وہ کل کیس انہوں نے عدالت میں گئے نہیں۔ ہاں جی، اور وہ ختم ہو گئے کیسز، کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے۔ اگر یہ پاکستان نہیں میڈم، اگر پاکستان ہوتا تو دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل ہونی تھی اس میں۔ نہیں، وہ تو دہشت گردی کی دفعہ تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تو ان کو اٹھایا جانا تھا، اور سال 6 مہینے تو پتہ ہی نہیں تھا چلنا کہ وہ ہیں کدھر۔ اس کے بعد کہیں جا کے قانونی کارروائی کا آغاز ہونا تھا، سعودی عرب سے، جیسے کہ آج کل کے حالات ہے۔ سعودی عرب سے حسن علی طور ایک صاحب ہیں، ٹرک ڈرائیور ہے، ٹریلا چلاتے تھے، ان کو تقریباً 1 ہفتے سے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پکڑا ہوا ہے۔ وہ بھی ٹک ٹاکر تھے، ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ میڈم، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، وہ کہتے جی اور قوانین بنائیں گے، سخت کریں گے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ تو قوانین پہلے ہمارے ملک میں ہے کوئی قوانین جو سسٹم کو چلا رہے؟ قوانین ہیں ظلم کرنے کے، زیادتی کرنے کے، ناانصافیاں کرنے کے، یہ قانون ہے۔ یہ قانون نہیں ہے کہ آپ نے ظلم زیادتی نہیں کرنی، لوگوں کو انصاف دینا، ان کو ان کے بنیادی حقوق دینے ہیں، یہ قانون نہیں ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں طاقتور کا قانون ہے، ڈنڈے کا قانون ہے، جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اسی کا ملک ہے اور اسی کا قانون چلتا ہے۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس میں وہی اعلامیے جاری کیے ہوں گے، اعلان کیے ہوں گے کہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سارا کچھ پی ٹی آئی پہ ڈالتے ہیں آپ، اور ان کو اتنا پیسیں کہ یہ جماعت ختم ہی ہو جائے،
जमातें इस तरह से खत्म नहीं होती, जमातें नजरिए की बुनियाद पे खत्म होती हैं। जब उनका नजरिया खत्म हो जाता है तो जमात खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अच्छा, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, कल फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और वो और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हुआ है फर्द जुर्म आयद कर दी है, क्योंकि बात को किसी न किसी नहज पे जाना चाहिए था। ये बीच में ही लटका के ना उसका फैसला कर रहे हैं, ना उसका ट्रायल कर रहे हैं, ना समाते ना कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। अब जो फर्द जुर्म लगी है तो इसके नतीजे में ये होगा कि जो प्रोसिक्यूटर है वो और जो मुद्दई है, उन दोनों की जो डिफेंस करने वाला है वो और जो दूसरा है वो सभी आके आर्गुमेंट करेंगे और ये बात किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी। अब ट्रायल शुरू होगा। अब फर्द जुर्म लगी है ना, खान साहब भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और जो दूसरों जिन्होंने इल्जाम लगाया वो भी। अब बात अच्छा है कि जो है फर्द जुर्म लगी, लेकिन उन्होंने तो इनकार किया है इससे कि हम लोगों ने ये नहीं किया। अब खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं कल 70 से ज्यादा लोगों की जो पीटीआई के हैं, और खान साहब ने उनको हदायत भी दी है और नया एक ऐलान बाहर आया है कि खान साहब ने जो स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो और सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो शुरू करने का कहा है कि 13 दिसंबर तक अगर आप हमारी मुतालबात जो दो हैं, एक तो जो सारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाकयात हुए उन पे एक ट्रायल जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए, तो उसका फेयर ट्रायल जो है वो होना चाहिए। अच्छा। अगर ये दो मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो 13 से नहीं 14 तारीख से इस महीने की शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो 26 तारीख के 27 का वाकया था उसमें अभी तक बेशुमार लोग जो हैं वो उनका पता नहीं चल रहा कहाँ उनको मार दिया गया, क्या किया गया, और आके बताते हैं कि हुआ कुछ भी नहीं है। मगर इंटरनेशनल मीडिया तो सांस नहीं लेने दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने तो तूफान बर्पा किया हुआ। देखें जो अल जजीरा है ना, जो कतर का है अल जजीरा, उसने बहुत ही बहादुरी के साथ हर जगह पे जाके कवरेज की है, चाहे वो फलस्तीन का मामला हो, लेबनान का हो, पाकिस्तान का हो या किसी भी मुल्क में हो ना, वो बहुत आज़ाद मीडिया। उसने जो रिपोर्ट शाया की है ना वो आप डिनाई नहीं कर सकते उसको। उसमें बहुत ज्यादा हलाकतों का उन्होंने डायरेक्ट दिखाया है कि ये लाशें हैं और ये सब कुछ है। आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात मेरे ज़हन में है कि जो शहबाज शरीफ है उसने जब अपने मुंह से ये कहा है कि हमने ये सब कुछ सिपा सलार की मदद से किया। अच्छा, सिपा सलार कह रहा है कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात थे, वज़ीर आज़म के कहने पे ये सारा कुछ हुआ। तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ना कि अगर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने सिपा सलार की मदद से किया और सिपा सलार ने कहा है कि गोली चलाने का जो ऑर्डर होता है ना वो हुकूमत वक्त के पास होता है, हम सिर्फ उसको अमल दरामद करते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं ना, आप इनको अगर थोड़ा सा इनकी डिटेल में, इन बयानात के डिटेल में जाए ना तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बयानात दिए, कैसे दे दिए इन्होंने बड़े बयानात जब कुछ हुआ ही नहीं। इनके मुताबिक अता ताडर के मुताबिक, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वहां कुछ नहीं हुआ। तो ये कैसे कह सकते हैं वहां कुछ नहीं हुआ, जबकि शहबाज शरीफ और सिपा सलार दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से वहां जो कुछ भी किया वो किया। अब मरियम नवाज जहां गई है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां पर सारे उन बच्चों को छुट्टी दे दी गई जिनकी नॉर्मल क्लासेस थी, लेकिन जिनको तहाइफ मिलने थे या जिनको क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट मिलना था, जिसको जो भी उन्होंने अचीवमेंट की थी, सिर्फ वही बच्चे थे, तकरीबन 3 से 4 हजार। और वहां पर सारी उसने सियासी तकरीर की। उसने कहा कि ये जो बच्चे हैं इनके हाथों में पत्थर, डंडे, सोटे वगैरह और डी चौक पे एहतजाज जचता नहीं है। जो तुलबा होते हैं ना, जो तालिब इल्म होते हैं, ये कायदे आजम ने ये जब तहरीक शुरू की थी ना पाकिस्तान की, तो उनके फ्रंट लीड के ऊपर स्टूडेंट थे। स्टूडेंट्स हमेशा ही अपना किरदार अदा करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझ होती है, वो न्यू जनरेशन होती है और वो उनमें वलवला और जोश जो है वो 50-60 साल की उम्र के लोगों से ज्यादा होता है। तो उनको जाके बजाय ये कि तालीम पे तवज्जो दे या कुछ देर जाके सारी सियासी तकरीर कर दी कि क्योंकि पता है ना उसको कि न्यू जनरेशन सारी पीटीआई के साथ इमरान खान को फॉलो करती है, तो जाके उनको ये कहती है
ये तो इनकी अकल है, मैं तो इनकी अकल के ऊपर बंदा मातम करे। और दूसरी बात ये है कि एक नया बयानिया जो है वो सामने आ रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे हैं, जैसे फैसल वाडा हो गए और दूसरे मोहम्मद मालिक वगैरह हो गए, जो सीनियर तजियाकार भी हैं, सुहेल वड़ाई वगैरह, ये सब कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ना, ये बिल्कुल नाकाम, नालायक है, और जो ताकतवर है इनका गंद उठाने के लिए अब तैयार नहीं है। तो अब जनवरी, फरवरी और मार्च में वो कह रहे हैं कि हम एक अवामी हुकूमत बनाएंगे। तो एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमारे ताकतवर जरूर सुनते हैं। ये खान साहब के पास भी जाता है, मुझे पक्का इसका ना पता चल गया। तो अभी मैं इस प्रोग्राम के जरिए से मैं उनको ये मशवरा देना चाहती हूँ कि देखें, अवाम की जो पल्स है ना, आप उसको समझे। खान साहब को खान साहब ही गिरा सकते हैं, और कोई नहीं गिरा सकता। जो भी आज उनको गिराएगा वो खुद गिरेगा। अपनी इज्जत अगर आपने बढ़ानी है ना, खान साहब को इक़्तिदार में ले आए। अगर वो कुछ डिलीवर नहीं करेंगे तो ये पीटीआई खुद ब खुद कोलैप्स कर जाएगी। अगर आप उनका बयानिया खत्म करना चाहते हैं तो खान साहब को इक़्तिदार में ले आए। अवाम चाहती है खान साहब को। अब 71 में भी यही हुआ था, जो अवाम चाहती थी वो नहीं करने दिया गया, जो अपनी मर्जी थी वो किया, तो मुल्क के क्या हालात हुए। अभी भी मुल्क हर तरह से डिफॉल्ट में जा रहा है, आप किसी भी कदर में ले लें। हर अच्छा, आखिर में बताइए मैडम, मैं भूल जाऊंगा, जा रहा है। आजकल वो फौज को बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि हमारा सीमेंट नहीं बिक रहा, ये कहाँ तक दुरुस्त है? हमारी ये चीजें नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा है। देखिए, मैं आपको वही बात कर रही थी ना कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो फॉलोइंग है ना, वो खान साहब की है। अगर खान साहब किसी भी चीज का ऑर्डर देते हैं तो हमारा खुद ब खुद दिल करता है कि हाँ वो करें। अब जैसे उन्होंने कहा ना कि फौजी मसनूआत की आप बॉयकॉट करें, तो अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं भी देखती कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फौजी फाउंडेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये डायरेक्ट मैकडोनल्ड, केएफसी वगैरह को ये अपनी चीजें सप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया और वो प्रेफर कर रहे हैं दूसरी चीजों को, रादर के वो फौजी फाउंडेशन की चीजें खरीदे। तो इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो पड़ेगा, क्योंकि कहाँ धड़ाधड़ चीजें बिकती हैं और कहाँ पे स्टॉक। लोग अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं लोग कि हम लोग ये खरीदने गए लेकिन हमने ये नहीं खरीदा, वो नहीं खरीदा, और मैंने कहा वो लोगों को भी ना इन्होंने पकड़ के बंद कर देना। तो लास्ट में सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि अब जो हमारे ताकतवर है ना, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज बराए मेहरबानी आप अवाम का जो दिल चाहता है ना, आप उस तरह से मुल्क को चलें। आप खान साहब को एक दफा फिर से इक़्तिदार में ले आए, तो फिर देखें आपके होता क्या है। अवाम को इस तरह से आप बेदर्दी से ना रोलें। ये अवाम है तो आप हैं, ये इदारे, अगर ये अवाम नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया मैडम ने जो बात की वो भी अपनी जगह ठीक है, मगर अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, जो रिजल्ट निकले, जो हकदार हो उसके हक, उसको उसका हक दिया जाए ना जी। एक कॉमर्स कल थे, क्योंकि हमने कॉमर्स खोल दिए हुए, कई लोग तो मजहबी तौर पे गालियां भी निकालते हैं वहाँ पे आके। उनसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, जो भी बातचीत आप करते हैं वहाँ से पता चल जाता है कि आपका तल्लुक किस ख़ानदान से है, किस मज़हब से है, किस माहौल में आपकी तरबियत हुई। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वो कॉमर्स उसी वक्त डिलीट कर देता हूँ। हमारी नज़र हर वक्त पड़ी होती है कॉमर्स पे। एक साहब ने लिखा था कि इमरान खान को मज़हब के साथ न जोड़े, सियासत को मज़हब के साथ न जोड़े। पाकिस्तान में सियासत, मज़हब, फ़ौज, खिचड़ी पकी हुई है। तो हमारे तो वहाँ पे उलमा भी सियासतदान है, तो सियासतदान जो है वो उलमा का रोल अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, इसी वजह से हुआ। मेरे जोड़ने से कि मज़हब और सियासत की खबर इकट्ठी दे दी या ना दे दी, उससे पाकिस्तान के जो उलमा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सियासतदानों को पड़ता है। क्योंकि ये आपको ही पता है कि जिस हालत में पाकिस्तान पहुंचा हुआ, उसमें उलमा ने भी अहम किरदार अदा किया, सियासतदानों ने भी एक दूसरे को इस्तेमाल किया। हर जगह पे इसी तरह का चलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।